We were discussing the second chapter of economics, that is fundamental concept and terminologies, and under that chapter today's topic is wealth. That we have discussed the meaning and characteristics of wealth, and today we'll discuss types of wealth. Now wealth can be classified as individual wealth and social wealth, and the another classification is national wealth and international wealth. So one by one we'll discuss both of them. So what is individual wealth? So individual wealth is which is under the ownership of an individual and meant for private consumption. ठीक है, जो भी किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के अंडर में है उसकी अपनी वेल्थ है, दैट इज इंडिविजुअल वेल्थ. फॉर एग्जाम्पल हिज हाउस और हर हाउस और his land or the land which is under the ownership of an individual, or we can say some precious jewelry which he is or she is owning. Okay, so जो एक उसकी अपनी personal property है, that is called individual wealth. Now what is social wealth? So wealth under the ownership of society and meant for collective consumption is called societal wealth. Means जिसका जो possession है, ownership है, वो एक सोसाइटी की है और जो एक से ज़्यादा पर्सन उसको यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल डैम है, ठीक है, गार्डन है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सोशल वेल्थ. सो इंडिविजुअल हमें नाम से पता चलता है विच इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड सोशल मीन्स विच इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ सोसाइटी एंड मीन फॉर कलेक्टिव कंजम्पशन. सो दिस इज फर्स्ट टाइप. द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज नेशनल एंड इंटरनेशनल. अब यहाँ पे भी नाम से यू कैन राइट द मीनिंग. नेशनल मीन्स विच इज अंडर द ओनरशिप ऑफ नेशन, एंड इंटरनेशनल मीन्स विच इज अंडर द ओनरशिप ऑफ द वेरियस नेशंस. ओके, जो इंटरनेशनली जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी ओनरशिप है वो सब नेशंस जो है वो मिलके डिसाइड करते हैं. सो वेल्थ बिलोंगिंग टू अ नेशन एंड possessed and treasured by a nation is called national wealth. It helps to generate exchange value directly or indirectly for a nation. उसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो रिवर्स, माउंटेन्स, लिटरेचर एंड स्क्रिप्चर्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेशनल वेल्थ. मीन्स जिसकी ओनरशिप नेशन के अंडर में है, गवर्नमेंट के अंडर में है, दैट इज कॉल्ड नेशनल वेल्थ, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन जनरेटिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट income for the nation. Clear? And second thing is international wealth. And so international wealth is wealth belonging to the earth and treasured by all nations which is possible to be developed for benefit of all. ठीक है, which is possessed by all nations. ठीक है, हर नेशन का उसके ऊपर हक है, and which is to be developed for the benefit of all. means सभी को benefit हो इस तरह से उसका development करना है. Now if we take the example of international wealth, then we can take the example of ocean. ठीक है, ओशन के ऊपर किसी एक की ओनरशिप नहीं होती है, काफ़ी नेशंस जो होते हैं जिसकी बॉर्डर वहाँ पे लगती है, सो दे विल कलेक्टिवली possess the ownership of the ocean and will develop it for the benefit of all. So national wealth means which is under the possession of nation and helps in generating direct or indirect wealth to the nation, and international means which is under the ownership of various nations and it is developed for the benefit of all. Now another point is, or another concept is welfare. Now what is welfare? So welfare is enhancement of life situation. Enhancement means to improve. ठीक है, improvement करना किसमें? in life situations. means it present whatever life you are living for betterment of life, your better for the betterment of your life, whatever you are doing, whether it is quantitative और qualitative. means अगर आप उसको measure कर सकते हो quantity में या नहीं कर सकते हो, whether it is economic or non economic, whatever activity you are performing for the enhancement of your life situation, then to improve the standard of living. ठीक है, आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट यू आर लोअर क्लास, देन यू विल ट्राई एंड यू विल वर्क हार्ड एंड यू विल improve your
standard of living from lower class to middle class, then that is improvement in standard of living. Then an overall state of improvement means हर तरह से आप अपना overall improvement कर रहे हो, तो that is called welfare. So welfare means enhancement of life situation, standard of living and an overall state of improvement. The concept of welfare is used by all philosophies from spiritual science to economics. All human activities, economic and non-economic, are ultimately done with the purpose of improvement of life. Means whatever activities we are performing are for the betterment or for the improvement in our life situations. Welfare can be measured quantitatively in the context of growth and qualitatively in the context of development. अब यहाँ पे growth जो है उसको हम quantity में measure कर सकते हैं. That's why it is said that welfare can be measured quantitatively in the context of growth and qualitatively in the context of development. Means development includes everything. It can be economic, it can be non-economic, ठीक है, एंड ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, अगर ग्रोथ होगा तो डेवलपमेंट होगा. सो डेवलपमेंट इंक्लूड्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एंड ग्रोथ इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स. इन इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट ऑफ वेलफेयर कैन बी क्लासिफाइड एज इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वेलफेयर. अब जैसे वेल्थ को हमने क्लासीफाई किया था इंडिविजुअल एंड सोशल में, इन द सेम वे वेलफेयर कैन बी स्टडीड एज इंडिविजुअल वेलफेयर एंड कलेक्टिव वेलफेयर. नाउ व्हाट इज इंडिविजुअल वेलफेयर? तो हम उसके नाम से पता चलता है कि व्हेन इंडिविजुअल सीक टू मेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव हीज और हर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वेल बीइंग, इट बिकम्स अ सब्जेक्ट ऑफ इंडिविजुअल वेलफेयर. मीन्स एक इंडिविजुअल पर्सन जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए या अपनी लाइफ सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल वेलफेयर. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, कलेक्टिव वेलफेयर मीन्स व्हेन नेशंस एंड गवर्नमेंट seek to improve growth, development, etc., it becomes subject matter of collective welfare. Collective means collectively means सबका जैसे मोदी सरकार ने कहा है ना, सबका साथ सबका विकास, वैसे तो सभी का विकास करना. तो जब गवर्नमेंट या नेशन कुछ डिसाइड करता है, कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, तो उनका जो भी गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज द कलेक्टिव वेलफेयर. सो कलेक्टिव वेलफेयर इज फॉर द वेलफेयर ऑफ और बेनिफिट ऑफ ऑल द पीपल. Now we'll see what is the relationship between wealth and welfare. So generally when wealth increases, welfare increases. As more wealth means higher capacity to generate monetary value. Means wealth में हमने क्या include किया था? Cash, then assets, properties, whatever a person is having, that is called wealth. अब wealth जो भी है वो इंक्रीज होगी, वो आपके पास ज़्यादा होगी, तो नेचुरली आपका वेलफेयर भी इम्प्रूव होगा. ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट स्पेंड कर सकते हो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए. ठीक है, तो जब वेल्थ इंक्रीज होगी तो नेचुरली वेलफेयर भी इंक्रीज होगा. एंड ग्रेटर पावर टू एक्सचेंज गुड्स एंड परचेजिंग पावर ऑफ फॉर द ओनर मीन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है प्रोडक्ट परचेज कर पाओगे, गुड्स परचेज कर पाओगे, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होगा. ठीक है, आप अभी लोअर क्वालिटी का या इन्फीरियर क्वालिटी का गुड्स परचेज कर रहे हो, देन इन लेटर स्टेज इफ़ यू हैव मोर मनी देन यू विल बाय नेचुरली क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड हैंस ग्रेटर वेलबींग. तो उससे क्या होगा, आपका जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई होगा, ऊपर जाएगा, अप जाएगा. एंड दिस इज लार्जली ट्रू इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, अब ये जो बात की हमने दैट इज ट्रू इन केस ऑफ इंडिविजुअल, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द नेशन, ठीक है, द होल नेशन, इफ़ यू टॉक अबाउट देन when wealth of nation increases in the form of national income, the welfare of people will increase only if this national income is equitably distributed among all sections of the society. अब जब भी हम देखते हैं, हम स्टडी करते हैं कि बजट जब गवर्नमेंट बाहर पब्लिश करती है, ठीक है, तो उसमें कुछ एक पर्टिकुलर क्लास होता है, पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, कुछ ग्रुप होता है जिसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं होता है. तो वो जो नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, इफ़ इट इज़ नॉट इन इक्विटेबल मैनर और इफ़ इट इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द क्लासेस ऑफ पीपल, देन इन दैट केस वेलफेयर विल नॉट इंक्रीज. ठीक है, सबका वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा, एक पर्टिकुलर क्लास का ही इंक्रीज होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दे हैव प्रोवाइडेड मोर फॉर द लोअर क्लास पीपल और दोज हु आर हैविंग BPL कार्ड,
ठीक है, जो एकदम लोअर क्लास होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, सिर्फ उनके बेटरमेंट के लिए किया है तो उनका वेलफेयर में भी इंक्रीज होगा, बट व्हाट अबाउट द मिडिल क्लास पीपल, ठीक है, उनके लिए तो कोई भी प्रोविजंस नहीं होते हैं, ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं होता है, तो फॉर देम वेलफेयर विल नॉट इंक्रीज. So it depends upon how the national income is distributed among the all classes of people. So this is the point of relation between wealth and welfare. So in case of individual, when wealth increases, welfare also increases. But in case of national wealth, if the national income is equally distributed among all classes of people, in that case only welfare of all the people will increase.